Hello everyone, how are you all? Am I audible to you? Yes, How are you, Ravi? I'm fine. And you? And how was your today's day? अच्छा था, good अच्छा था. था? What all thing Hmm. have you done today? What? I did not. I did. I didn't do anything, but it is good. It was good. You have Yes. scrolled your phone. You have done English practice today. Yes. Yes. I am listening. Yes, I have listened podcast Okay. and Podcast. Okay. And and advanced grammars okay. What have you revision. learned in advanced grammars? Present participles or past participles. Okay. So grammar fascinates you, like you like grammar portion. Yes. Okay, great. And have you done previous practices of English like Yes. yeah, great, very good. So can you tell me what all thing we have learned in past two classes? What all thing we have Yes. covered? Yes, please tell me. Mm, हम sorry. Uh, we uh, we we sorry एक मिनट. हिंदी. Can I speak in Hindi? You can speak in Hindi and try to translate it in English if you can. Yes, I am trying. Can you uh, please switch on your camera? Yes. Now we can speak face to face. Yes. हमने फर्स्ट क्लास में हमने फॉर्मल इनफॉर्मल और वोकेबलरी इनहेंस करने के लिए हमने 5 मिनट का हमने वो लिया था सभी ने एक साथ. Introduction. हाँ, इंट्रोडक्शन We have और provided वोकेबलरी का हमने किया था. introduction to check our vocabularies. और सेकंड क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनको हमने डिफाइन करना सीखा था कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. In second और फिर class, we have tried to define subject, verb, and object. यस. And सॉरी, आई डिड नॉट रिमेम्बर. no issues. Ilma, how are you? Fine, ma'am. Fine, good. How was your day? Good, ma'am. Good. What all And how thing have was you done? yours? My day was very hectic today. So what all thing have you done today? Some household work and some English practice. English practice you have done? Yes, ma'am. Okay, but all thing have you done in English practice? जो मैम आपने पिछले क्लासेस में करवाया था उन सब चीजों को रिवाइज किया. Okay, you have done revisions of last classes, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Ravi right now have told us that we have done subject, verb, objects, and introduction Yes. part in our previous class. Yes, yes, So yes. so Yes. can you, Ilma, can you please tell me what else we have done in our previous classes? In like in class 1, day 1, day 2? Ma'am, firstly, we did pronunciation from A to Z. Pronunciations, A to Z, right? Yes, ma'am. And Subject, verb, object, and our introduction. introduction, yes. Introductory And, phrases also I have told. Yes. And blood relations. family vocabs. Yes, ma'am. Yes, Family yes, vocabularies we have Family also done. vocabs. Yes, family vocabularies. So I Vocabulary. have used vocabs, right? मैंने अभी vocab वर्ड का यूज करा vocabulary की जगह. तो vocabs जो होता है ना, वो उसका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया है ना. तो हम vocab भी यूज Vocab. करते हैं और vocabularies भी. Prachi, are you there? Yes, ma'am. How are you, Prachi? I am fine, ma'am. You are fine. How was your day? It was good. It was good. What all thing have you done today? I have done school homework and I played outside today. Okay. And I have tried to speak in English. Okay. What have you learned in English?
I just try to speak English To and I conversate. have revised the previous work. कॉन्वर्सेशन, आपने कॉन्वर्सेशन करना का ट्राई करा है ना. टू स्पीक है ना, स्पीक जो हो गया वो मतलब ओल्ड स्कूल हो गया. वी कम्युनिकेट. आई हैव ट्राई टू डू कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, राइट? Yes, ma'am. है ना. रवि, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो. वी आर जस्ट डूइंग कॉन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग टुडे, अभी तक. ठीक है. सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, if Prachi, Ilma and Ravi, if you try to communicate by yourselves, अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहो, try to communicate in English. Prachi, you want to ask Ilma or Ravi about something? They both are older than you. You want to take any tips or something? Yes, ma'am. Whom you want to speak? I want to speak from Ilma. Ilma, okay. Yes. Please try to Ma'am, I communicate. have to ask question from him. Her. Sorry. I want to ask question from her. You can ask if you want to. Like you are having question regarding studies, about what she is doing right now. She has recently gave her 12th exams. So you want to take any tips or something? Yes, ma'am. Ask. Speak with her. Ilma, how you have cleared your 10th exams? Self-study. Self-study. Okay. Anything else? You want to ask how much she scored, or how was her 12th exams, and anything? Yes, ma'am. Please ask. You can ask Ravi also. How much you score in 10th class? My Sorry, overall percentage is 88%. Okay. And Ravi, yes. how much you score in your exams in 10th class? Sorry, I did not remember how much I score in 10th class. In Or in 12th? 12th? 12th, I maybe 77. Okay. Ravi, you want to communicate with Prachi, Ilma, or I guess Rakesh ji is also online. Hello, Ilma. What do you want? What do you want to do in your life? Sorry, can you speak again? What do you want to do in your life I in want to become future? a doctor. Oh, nice. Yes. Ilma, you want to ask anything from Prachi, Rakesh, and anyone else? Prachi, Yes. you are from which board? Can you repeat it again? You are from which board? I mean to say a state board or CBSE. I'm Which board? state board. Board. Which state board? Punjab board. Yeah. Right. So who And else Ravi? is- I am CBSE board. Okay. Are you student? No, I am not a student. And what are you doing right now? Nothing. What do you- Beruzgar. But Berozgar. No. What else you want to do, Ravi? Like are you looking for a job or something, or for higher educations? I have quieted my study. Quitted. Quitted, sorry. I quit my studies. Or you I can quit say my I have studies. passed out from 12th class. Or have you done your graduation? No. So are you going to do that? Yes. Okay. So you are going to continue your studying. You are not like quit. You will continue. Yes, it. Yes. Right. And how are you, Rakesh ji and Sujit ji?
Yes, ma'am. How are you? Fine. Fine. Where were you last in the last class? आप क्लास में नहीं थे? Sorry, ma'am. Actually, क्या था? Try I to have no communicate. time. You have no time for studies? आपके पास Ma'am, स्टडी के actually, लिए टाइम नहीं है? मैम अभी तो मैं जॉब से आ रहा हूँ। हाँ हाँ. दौड़ते हुए आया हूँ तब क्लास ले पा रहा हूँ। I have also came from my office only. मैम ऑफिस से आते You need इतने to टाइम हो जाता है। you need to take out some time for the studies, okay? अभी 9 to 10 है ये क्लासेस, तो you need to be punctual. आपका होमवर्क भी नहीं आ रहा है. मैम एक्चुअली नो टाइम, मैं इतना बिजी था कि अभी हमारा R13 भी जा रहा है, रिटर्न जा रही है, I'm aware about that. मुझे पता है. इसलिए टाइम नहीं है क्योंकि कल लास्ट डेट थी। अच्छा, तो ट्राई टू गेट आउट सम टाइम ना. थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा देखो स्टडीज के लिए. यू वांट टू लर्न इंग्लिश, है ना? ओके मैम, तो ओके मैम। तो राकेश जी, आई वांट टू आस्क, कैन यू टेल मी व्हाट ऑल थिंग हैव वी लर्नड इन फर्स्ट क्लास? आपने फर्स्ट क्लास ली थी, हमने उसमें क्या क्या सीखा था? कैन यू ब्रीफ इट आउट? थोड़ा ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. उसमें मैम एक्चुअली उसमें हमने अपनी ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. ट्राई करो जरा सा. रवि देखो इतना पटर पटर आजकल बोलने लग गया है. फर्स्ट क्लास में ये बोल रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं नहीं बोल सकता. ट्राई करो. रवि, एम आई राइट? नाउ यू आर स्पीकिंग Yes. अ लिटिल ना. Yes, yes, सी I can. सी ट्राई टू कम्युनिकेट. राकेश जी ट्राई मैम करो. एक्चुअली अभी तो ट्राई तो कर रहे हैं मैम, एक्चुअली क्या अभी 1-2 दिन 1 या 2 दिन टाइम लगेगा क्योंकि जब तक मैं क्लास रेगुलर लूंगा नहीं। ओके, व्हाट हैव यू लर्नड इन फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? सॉरी मैम, कुछ भी नहीं. सीखा तो मैम एक्चुअली क्या सीखा था अभी तक रिमाइंड भी नहीं, हमने सीखा क्या था। हमने हमने A to Z वोकैबुलरी करी थी. टू जेड केवड़ी और अपना क्या बोलते हैं, हमने ABCD पढ़ा था. अपनी कैटेगरी, फॉर्मल कैटेगरी, फॉर्म ऑफ फॉर्मल फॉर्मल, इनफॉर्मल. फॉर्मल इनफॉर्मल ये फॉर्मल हाँ. ये किसी ने नहीं बताया था, राइट? मैंने I can say. यू कैन से. यू कैन से का मतलब हो गया मैं बोल सकता हूँ. आई कैन से, Sorry. Sorry. है ना? Ability. Sorry. कोई बात नहीं, अभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी आएगा. ठीक है. हाँ जी राकेश जी, कंटिन्यू. फ्री में अभी एक तो कुछ नहीं। नहीं याद हो? ओके. सुजीत जी, हाउ आर यू? फाइन. सो हाउ वाज योर डे? कैसा था आपका दिन आज का? Excellent, ma'am. एक्सीलेंट. ग्रेट. वेरी गुड. सो आर यू एट होम और आप बाहर हो कहीं पे? Yes, I'm at home. यू आर एट होम. Ma'am, home. होम. सो व्हाई हैवंट यू ऑन Home योर पे कैमरा? कैमरा ऑन करो. नहीं लगे रखो. कैमरा ऑन करो और प्लीज राकेश जी को बताओ कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या करा था. व्हाट हैव वी लर्नड इन अवर फर्स्ट Hello. क्लास? हाँ जी, हेलो. यस मैम, आपने हमने पढ़ा था इसमें इंग्लिश. इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, फिर हम हिंदी में भी सुनेंगे. मैं इंट्रोडक्शन के बारे में सुना था. अवर इंट्रोडक्शन और बुक है A to Z, और जो प्रोनाउंसिएशन. मीनिंग के पीछे. हाँ जी प्रोनाउंसिएशन. मैम. जी हाँ जी. और फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था मैम. और फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था. फॉर्मल इनफॉर्मल, राइट. और मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस भी दिए थे जिसकी वजह से आप जी. इंट्रोडक्शन देना थोड़ा इजी कर सकते थे. ठीक है. माय नेम इज दिस, आई एम डूइंग जॉब और समथिंग, राइट?
ठीक है। यस मैम। हाँ जी। और सेकंड क्लास में सुजीत जी हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि राकेश जी क्लास में थे नहीं, थोड़ा आप बता सकते हो? सेकंड क्लास में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था मैम। फैमिली वोकेल। वो कैब जी जी। फैमिली वोकैब या फिर फैमिली वोकैबुलरी, ठीक है। फैमिली वोकेबुलरी। ओके। हाँ ठीक है। वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन सबके लिए है, ये दो जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, क्योंकि हम वो कर ही रहे हैं, ठीक है। फैमिली ठीक। वोकैबुलरी, हाँ। ठीक है। राकेश जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी यस आप मैम। लास्ट क्लास की वीडियोस देख लेना, उसमें हमने फैमिली और मैम वोकैबुलरी वर्ब के पढ़ा बारे था। में पढ़ा था। वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में। यस मैम। हम ओके मैम। कैन एनीवन टेल मी वेयर वी यूज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? हम जिसमें काम कर रहे हैं, क्या लेकिन जिसका हम काम कर रहे हैं। पे हम कार्य? इस पे हम वर्क कर रहे हैं सब्जेक्ट। नहीं, वो डूअर हो जाएगा, जिस पे हम काम करो डूअर होगा। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है। करता जैसे हम करता। अभी जैसे हाँ जो हाँ। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट। अब राइट। तो तो रवि, कैन यू प्लीज टेल, गिव वन एग्जांपल, और उसके अंदर से आप बता सकते हो इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, और क्या वर्ब है? यस, प्लीज। वी कैन से वी आर रीडिंग इन इंग्लिश। तो वी मतलब वी, हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। पढ़ने का काम राइट, रीडिंग चल रहा है, और हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हम है। ठीक है। जिस पे सब्जेक्ट हो काम गया जिस पे जो कर वर्ब रहा हो है। गया। हाँ, वर्ब अब जो कर रहा है वो वर्ब है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग वर्ब हो गया। हाँ। और किस पे कार्य हो रहा है? हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। एक सेकेंड, मैं आपको ना, जैसे राकेश जी है, सुजीत जी है, और बाकी जो है, उनको एक चीज ये आप प्लीज रीड करो, और ये आपके ना नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस आप जो बना पाओगे ना वो इसी से बना पाओगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करता है। करता है मतलब जो डूअर है, जो काम वो कर रहा है, जैसे राकेश जी है, ही है, शी है, ठीक है। ये दे है, आई है, मैं हूँ, वी है, हम सारे हैं। हम सारे क्या है? हम कोई कार्य को करने वाले हैं, ठीक है। इसकी जगह हम किसी का नाम भी ले सकते हैं। मैं बोलूंगी सुजीत इज रीडिंग अ बुक। सुजीत कौन हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट। प्लीज इसको नोट कर लो सारे, इसमें बार बार कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया कि जो करता है, जो काम को करता है, ठीक है। डूअर, मैं डूअर हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें टीचिंग दे रही हूँ, पढ़ाना कर रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ मतलब मैं तुम्हें वो लेसन दे रही हूँ, टीचिंग दे रही हूँ, वो हो गया वर्ब। जो मैं काम कर रही हूँ, जो कार्य करा जा रहा है, ठीक है, जो कार्य करा जा रहा है वो वर्ब हो गया। और मैं क्या कार्य कर रही हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कर्म। तीनों चीजें क्लियर है? यस। यस मैम। क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है। इसी से ही राकेश जी, सुजीत जी और बाकी सब, इनके जो भी सेंटेंसेस बिल्डिंग है ना, ये तो आप डेली डेली की रख ही लो, 5 बनाओ चाहे 6 बनाओ, ठीक है। ये मतलब ये कोई मैं जी डेली का होमवर्क नहीं दूंगी कि आप बनाओ बनाओ लिख के दूं मैं आपको, पर ये है कि आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। जैसे आई स्टडी इंग्लिश, आई, आई मतलब क्या हो गया? हाँ, मैं मैं स्टडी का मतलब क्या हो गया? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हूँ क्या नहीं, होएगा? अच्छा ये बताओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से, राकेश जी, ये आपको एक यस एग्जांपल दिख रहा है? नीचे लिखा हुआ है आई स्टडी इंग्लिश। हाँ। यहाँ आई स्टडी इंग्लिश। ये दिख रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट वाला नीचे। एग्जाम्पल है, वर्ब एक्शन वर्ड एग्जाम्पल प्ले रीड ये हो गया ही स्टडी। प्लेज फुटबॉल और आई स्टडी इंग्लिश लिखा हुआ है। हाँ हाँ मैम। हाँ जी। फुटबॉल अरे बुक ये इंग्लिश। येलो लाइन के ऊपर देखो भाई। ये जो लास्ट,
चलो कोई आई बात स्टडी, नहीं। हाँ आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी आज इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, कोई अभी मत बताना, राकेश जी बताओ। मैंने आपको क्या हाँ जी, समझाया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट। आई स्टडी इंग्लिश में से आई क्या है, सब्जेक्ट क्या है और इंग्लिश क्या है, आप मेरे को बता सकते हो? मैम आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश यस। जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हमारा स्टडी जो हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब। 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 और ठीक है। वर्ब। ठीक है। सुजीत जी आप बताओ, ही प्लेज फुटबॉल में कैसे आएगा? ही क्या है? सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट। ओके। प्लेस क्या है? प्लेस क्या है? व्हाट। वर्ब। हाँ वर्ब है। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। 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 ठीक है। अब ही प्लेज फुटबॉल का मतलब क्या होता है? और फुटबॉल खेल रहा है, वो नहीं। फुटबॉल खेलता है। खेलता है। वन ही वन प्लेज फुटबॉल, वो वाकिफ। खेलता है। ठीक है। वो डेली फुटबॉल हैबिट है उसकी। खेलता है। ठीक है। ये क्लियर है अभी आपको? ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन बताएगा, मतलब जैसे क्या कुछ लोग चीज? नहीं थे। मुझे ना कोई एक पर्सन कोई बताओ, प्राची आप बताओ कि हमने जो वोकैबुलरी, फैमिली वोकैबुलरी पढ़ी थी, उसमें से कोई 5 फैमिली वोकैबुलरी बताओ मुझे आप। 5। मैम जैसे मदर फादर, यस, एनी 5। मदर। मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड कजन्स। बस ठीक है। इसके अलावा कोई 5 बताओ। रवि कैन यू प्लीज टेल 5 मोर? नेफ्यू, नीस, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। बस बस 5 थे। ठीक है। तो अभी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये 4 रवि ने न्यू बताए हैं। ठीक है। कौन बताएगा रवि के अलावा, कौन बताएगा इनके मीनिंग? कौन है क्लास में? क्या पहले चीज मैं मैम? मुझे आप ये बताओ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? फादर इन लॉ मतलब, फादर इन लॉ मतलब चचेरे साहब हो गए। नहीं नहीं नहीं। सास ससुर मैडम। सास ससुर ससुर, भाई। सास ससुर। सास ससुर। ठीक है। फादर इन लॉ और सास मदर इन लॉ होते सास ससुर। और आप जो चचेरे की बात कर रहे हो ना, कि चाचा मामा कजिन, ताया, वो कजिन, कजन हो कजिन, जाएगा मैडम। उनके जो कजिन, बच्चे कजिन। हो कजन हो गए जाएगा। वो हो गए कजिन्स। और जो चाचा मामा ताया होता है उनको हम अंकल या आंटी बोलते हैं। ठीक है। हाँ। अंकल या आंट। ठीक है। आंटी भी नहीं बोलेंगे हम, आंटी हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आंट। ठीक है। मैंने ये ना पुरानी उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा हाँ, 2 3 और रवि ने और बताते। एक तो हो गया। अब ब्रदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ पता है किसी को क्या होता है? साला एंड साली। कौन? साला एंड साली। दामाद एंड साली। क्लियर बोलो। ब्रदर इन लॉ, साला हो गया। हाँ ब्रदर इन लॉ। ठीक है। ब्रदर, क्या? और सिस्टर इन लॉ। अब देखो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन साली लॉ हो जो गया। होती है, अब देखो साली तो ठीक है। अब ये भी होता है कि जैसे मान लो आपका भाई है, ठीक है, और उसका जो, उसकी जो वाइफ है आपकी भाभी लगती है ना, हाँ तो वो भी, उसको जी। भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फैमिली वोकैबुलरी सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। किसी को कोई डाउट है अब तक जो हमने पढ़ाया है? नो। मुझे कोई नो एक मैम। पर्सन, कोई एक पर्सन, किससे पूछूं मैं, रुको बताती हूँ, नाम ही ले लेती हूँ। मैं बताता हूँ मैडम। मेरे को पूछने तो दो। मैं ये कह रही हूँ कि कोई मेरे को ना, एक पर्सन मेरे को ना थोड़ा पुराना रिवाइज भी करना है। चलो सुजीत जी से स्टार्ट करते हैं। सुजीत जी आप A to Z की वोकैबुलरी जो प्रोनाउंसिएशन मैंने करवाई थी, वो एकदम धीरे धीरे एक बार बोल के बताओ। ए बी सी डी ई एफ
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। किसी को कुछ चीजों में लगा मिसप्रोनाउंसिएशंस तो बता सकता है? मैं बता देती हूँ। जो आपकी मिसप्रोनाउंसिएशन हो रही थी वो एक W में हो रही थी और एक I में। आई को ज्यादा नहीं खींचना, आई के साथ जो है ना, आई ई नहीं, ई की ज्यादा साउंड नहीं आनी चाहिए, आई, ठीक है, छोटा सा आई, आई, ठीक है, और डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, W डब्ल्यू आई। इनमें आप थोड़ा करेक्शन करते रहो, डेली का करो, ठीक है। अभी देखो क्लास 2 के 2 क्लास पहले मैंने बताई थी, तो मैं चाह रही पीछे का छूटे ना, उसको लेके चलते रहो, ठीक है। और अभी मेरे को राकेश जी, ठीक है, आप ही एक बार बता दो पढ़ के एक बारी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z। यू कहाँ गया भाई? ठीक है, देखो U आपका एफ में, आई में, ठीक है, सेम सुजीत जी वाला हाल हो रहा है, आई में, ठीक है। एफ, एफ को भी सटल रखो थोड़ा, एफ नहीं, एफ, ठीक है, एफ, एफ आई, ठीक है, और लास्ट की लाइन, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इन चीजों पे डेली की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिन जिन का अगर कुछ इश्यू आ रहा है ना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है। अभी देखो पूरी क्लास के आगे हम बोल रहे हैं, सबको पता है कि कहाँ किसका क्या इशू आ रहा है। एक बार रवि आप भी बोलना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। डब्लू, W, हाँ यस, यहाँ प्रॉब्लम। मैडम बी में भी आया थोड़ा। थोड़ा सा भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये है कि आप ना ग्रुप में ना एक प्रैक्टिस डेली की डाल दो। जब तक ये सटल नहीं होएगा, ठीक नहीं होएगा ना तुम्हारा, तुम लोगों को सेंटेंस में ना इशू आएगा, ठीक है। ये जब तक ठीक नहीं होएगा, अब हम बचपन से ये चीज पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ इसको ठीक करना है। एक डेली की प्रैक्टिस रहेगी तुम सबकी, एक जना नहीं सबकी, कि ऑडियो में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा। इसको डेली ऑडियो में ना एक टाइम, कोई भी तुम ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में लंच ब्रेक में तुमने एक बार बोल दिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। ये तुम्हारी डेली की रहनी चाहिए। जहां इशू आएगा मैं तुरंत बता दूंगी कि हाँ इसको ठीक करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस डेली की रहेगी, मैं आज डाल रही हूँ, ठीक है, ग्रुप में। ओके, ओके मैम। ओके, क्लियर है। डेली की रखो तुम लोग, कोई इशू आता है मैं तुरंत उस चीज को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। डन है, ठीक है, ठीक है, ये प्रैक्टिस रखना। अब एक और चीज हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, इंट्रोडक्शन वाला। कोई इल्मा, इल्मा है क्या? इल्मा अभी नहीं आई। प्राची, हमने जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस का यूज करा था लास्ट क्लास में, 2-3 चीजें मैंने बताई थी, कैन यू प्लीज रिपीट देम? मैम मतलब इंट्रोडक्शन में जो किया था। माय नेम इज प्राची, वो सारा यस मैम। क्या क्या था उसमें? My name is Prachi. I read in 9th class. I live in Ludhiana with my family. और भी मैम। और एक दो चीजें और थी शायद इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में। इल्मा, आपको याद है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में और एक दो चीजें थी, वो क्या था? Yes, ma'am. I am learning English because बताओ बताओ। I am learning English because I want to build my confidence towards speaking it. ठीक है। और अगर मैं अभी सबसे पूछती हूँ, अगर हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, मेरे को सुजीत जी बताएंगे कि अगर हमें किसी को
मान लो आप ऑफिस में किसी से नया मिल रहे हो, न्यूली किसी से मिल रहे हो, आपके ऑफिस में कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है, तो हमें उसको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना चाहिए? My name is Sujit. I am I live in Delhi. Uh, And और आपको क्या बताना चाहिए उसको? राकेश जी, कैन यू हेल्प? नेम एंड वर्क, क्या बताना चाहिए? नेम, नेम और वर्क, और वर्क, या वर्क, वर्क या स्टडी हो, वर्क नहीं, वर्क, एंड वर्क नहीं, वर्क नहीं बोलना, वर्क। वर्क, ठीक है। माय नेम इज राकेश, I am माय living in नेम, I am living in Delhi or wherever you are living. Okay, I am living in this place. I am working as a accountant. Okay, मैं अगर आप किसी को नया मिल रहे हो, किसी को आपको लगता है कि हाँ बताना चाहिए मुझे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ या इस लोकेशन पे करता हूँ, दैट यू कैन टेल देम, ठीक है ना, कि मैं इस कंपनी में इस पोजीशन पर हूँ और मेरे को इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपसे मिलके अच्छा लगा। ग्रीटिंग्स मैंने आप लोगों को बताई थी कि ग्रीटिंग्स कैसे देनी होती है, ठीक है। ग्रीटिंग्स में हेलो, हाउ आर यू, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब होता है आप किसी से जब पहली पहली बार मिलते हो, तो जैसे हम हिंदी में नमस्ते करते हैं, है ना, हिंदी में हम नमस्ते करते हैं, हम उनको बोलेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और ग्रीटिंग्स में रवि और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ग्रीटिंग्स में? याद नहीं आ रहा अभी। और कोई बता सकता है? मैम एक तो गुड मॉर्निंग हो गया, यस, गुड आफ्टरनून हो गया मैम, यस, गुड इवनिंग हो गया। गुड इवनिंग हो गया, यस, एंड गुड नाइट हो गया, ओके, गुड चलो नाइट हो अच्छा गया। पॉइंट है। चलो, वेयर वी यूज इवनिंग, हम गुड इवनिंग कब यूज करते हैं राकेश जी? मैम एक्चुअली 12 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, 3 बजे, 4 बजे नहीं। के बाद। अरे राकेश जी से पूछ रही हूँ। हाँ जी राकेश जी, हाँ जी मैम, हम गुड इवनिंग कब इवनिंग यूज मैम करते हैं? 5 o'clock, 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, ठीक है, 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक हम गुड इवनिंग यूज कर लेते हैं, 8:30 बजे। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सुजीत जी हम कब यूज करते हैं? मैम 12 से 3 क्यों 4 बजे क्या यूज करते हैं? इवनिंग, इवनिंग मैडम। नहीं, गुड इवनिंग हम 4 बजे का यूज नहीं करते, हम 4:30 टू 5 के बीच में, 5 to 8, 8:30 हम इवनिंग यूज करते हैं। पर स्टिल कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि हम 12 PM से लेकर हम 4:30 PM ऐसे करके हम गुड आफ्टरनून हम यूज करते हैं, ठीक है। और हम गुड मॉर्निंग कब यूज करते हैं? सुबह मैम, सुबह। सुबह 8 बजे। और हम गुड आफ्टरनून को और क्या कह सकते हैं, किसी को आइडिया है क्या? मैम नून। नून ऐसे यस, बोलते हैं। राइट, गुड नून, गुड Good noon। नून, है ना, ठीक है। गुड इवनिंग को हम क्या कहते हैं, कुछ आइडिया? शॉर्ट फॉर्म में गुड इव, ठीक है, गुड नून, गुड इव, ठीक है, मेजरली हम यूज नहीं करते, ठीक है, पर गुड इवनिंग, गुड नून, ठीक है, और गुड नाइट तो आपको पता है रात को हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी बेसिक जो आपको ये आने चाहिए, अभी इसमें भी ना बहुत छोटी माइनर माइनर सी चीजें आती है कि इस टाइम से इस टाइम पे जब सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तब का अलग होता है, ठीक है, वो हम एडवांस क्लास में सीखेंगे, अभी बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमने ये सीख लिया, ठीक है, इसके बाद हम टाइम का भी सीखेंगे, जब हम किसी को टाइम बताते हैं, हम बोलते हैं 2:30 हो रहे हैं, ठीक है, अभी 9:15, 8:15 ऐसे करके आएगा, वो भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी ये पूछ रही थी, अब जैसे कोई स्टूडेंट है, इल्मा या प्राची या रवि, कोई भी बता सकते हैं, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है और वो एक न्यू स्टूडेंट से मिल रहा है, उनकी क्लास में हो सकता है या बाहर कोई हो सकता है, ट्यूशन में हो सकता है, तो हम उसको अपना इंट्रोडक्शन में क्या क्या बता सकते हैं? एनीवन टेल मी। हम उसे अपना नाम बताएंगे, हम कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, और जैसे न्यू न्यू एडमिशन हुआ है तो पुराने स्कूल के बारे में बताया कि मैं वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हूँ, वो अपनी फैमिली के बारे में बताएगा,
और वो अपनी हॉबियों के बारे में बताएगा कि ये मेरी हॉबी है, हम्म, ये सारी चीजें। और एज भी बता सकते हैं ना, हो सकता है वो हाँ बड़ा हो आइए, छोटा, हाँ। एज बता सकते हैं, क्लास बता और सकते हैं कि आई एम स्टडिंग इन दिस क्लास, और क्लास। और वो ये अपना इंटरेस्ट भी बता सकता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और मेरे कितने दोस्त थे पुराने स्कूल में। अब हम इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक, हम किसी को ज्यादा जानते नहीं है, तो हम किसको ही हमें कहता है कि ये न्यू स्टूडेंट है क्लास में, टीचर बोलते हैं ये न्यू स्टूडेंट आया है क्लास में, तो वो न्यू स्टूडेंट क्या क्या बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में जो है राकेश जी न्यू स्टूडेंट आए हैं, तो राकेश जी आपको एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है क्लास को, तो आप क्या दोगे? आप एक न्यू स्टूडेंट आए हो। सर पहले तो मैं बोलूँगा अपना नाम। अपना नाम नहीं बताना, वो हमें सबको पता लग गया कि नाम बताते हैं फलाना बताते हैं, बोल के बताओ क्या बोलोगे। पहले ग्रीटिंग देगा ना वो पहले। हाँ हाँ, सबसे पहला काम मैंने आपको सबसे चीज पहले करवाई है ग्रीटिंग्स, ठीक है, जो रवि ने सही पकड़ी है कि हम सबको पहले ग्रीटिंग करेंगे, ठीक है। मान लो आप किसी से सुबह मिल रहे हो, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज राकेश एंड आई एम लिविंग इन दिस लोकेशन, मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं एमपी में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। एंड आई एम एन अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। और आई एम न्यू इन दिस बैच, मैं इस बैच में इस क्लास में न्यू स्टूडेंट हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज मैं फ्लुएंसी चाहता हूँ, ऐसे करके हम बता सकते हैं, राइट। छोटा सा ही चाहिए होता है। चलो, फॉर हम्म। एग्जाम्पल प्राची, यू आर अ न्यू स्टूडेंट इन दिस बैच, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे? मैम अपना पहले मैं हाय हेलो या फिर इंग्लिश, गुड इवनिंग। इंग्लिश में करके दिखाओ, आप न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता रही हूँ कि हेलो क्लास, प्राची इज अ न्यू स्टूडेंट, प्राची कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, I say good evening, good afternoon, and then I introduce myself, my name, age. I am from Ludhiana, and my hobbies, and I am 14 years old. ओके, अब ये देखो, अभी ना इंट्रोडक्शन हम देते हैं, इंट्रोडक्शन के भी एक पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज अच्छी लगेगी कि हम पहले बोल दें, हम मान लो हम ना पहले चीज ये बोल दें मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे घर पे ये लोग हैं, मेरी उम्र ये है। ये बिल्कुल ही सुनने में ही अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे बोलूँ हेलो माय नेम, हेलो आई एम अकाउंटेंट, फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग, उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, उसके बाद मैं बोल रही हूँ मेरा नाम ये है, उसके बाद मैं ऐसे पैरामीटर्स में चलती है हर चीजें, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में नाम बता रही हूँ तो पहला मैं ये चीज कवर करूंगी, ये जो नॉर्मल बायोडेटा होता है हमारा, मैं इतने साल की हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ रहती हूँ, ये तीन पार्ट, नाम, उसके बाद मैं कहाँ रहती हूँ या फिर मेरी लोकेशन कहाँ की है, और मैं इतने साल की हूँ। अगर इम्पोर्टेंट है तो जरूरी नहीं है, आपको इंटरव्यू में तुम बैठे हो, हम नहीं बताते उम्र की, हमारी उम्र इतनी है, पर कभी इंटरव्यू में ऐसे हुआ है तुम लोगों के साथ कि तुम पहले नाम बताए हो, फिर तुम बोल रहे हो मैं यहाँ की क्वालिफिकेशंस मेरी ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, उसके बाद तुम उम्र बता रहे हो, या तुम ये बता रहे हो मैं यहाँ रहता हूँ, कभी ऐसे करते हो? नहीं, तीनों एक साथ ही एक्सप्लेन करना होता है ना। हाँ, ये तीनों को तभी मैं कह रही हूँ, एक ना प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होता है, एक लेटर होती है ना, लेटर का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया? हाँ, जैसे हम किसी को अपना लेटर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल या टू लेटर द नहीं, मैन। लेटर, लेटर, लेटर। अच्छा, वो ABC के तो लेटर तो ही है। क्या? ABCDE लेटर ही है ना। लेटर नहीं कह रही मैं, लेटर, लेटर, लेट सॉरी, लेटर। सॉरी। इल्मा, आपको पता है लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर। किसी और को पता है लेटर का मतलब क्या होता है? तो मैं चिट्ठी होती है मैडम। चिट्ठी, लेटर नहीं बोल रही मैं, लेटर LETTER नहीं बोल रही मैं, लेटर तो मतलब होता है चिट्ठी, और चिट्ठी भी नहीं होती, वो पोस्ट हो गया, लेटर तो हो गया तुमने वो हाँ जी मैम। लिखा है, लेटर लिख रहे हो किसी को, लेटर होगी सीडी,
स्टेयर लेडर, ओ, है ना, लेडर होगी सीढ़ी, ओ, तो हम बोलते हैं सक्सेस की लेडर। सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता की सीढ़ी। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। सफल सफलता, है ना, सफलता की सीढ़ी, लेडर, कि सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, कोई कोई अच्छा, बहुत अच्छा इंसान काम कर रहा है, तो हो गया सफलता की सीढ़ी, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन भी तुम देते हो, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, लेडर एक चढ़ रही है, तुम पहले कुछ बोल रहे हो, फिर ऐसे चल रहा है वो उस चीज को, ठीक है। तो उसको इस वे में बोलो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी उम्र ये है, फिर उसके बाद तो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ, जब भी मैं अपना इंटरव्यू देने जाती हूँ, तो मेरा बेसिक होता है, मैं अपना नाम बताऊंगी, पहले मैं उनको ग्रीट करूंगी। ये चीज नोट कर लो, अगर किसी के पास कॉपी पेन है, राकेश जी नोट कर रहे थे, सुजीत जी नोट कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, ठीक है, कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इंट्रोडक्शन में? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के बाद क्या आएगा? नेम। नेम, नेम के बाद आएगा एज, हमारा एड्रेस क्या है, ठीक है। एज वगैरह तुम बता सकते हो, ओ, हाँ, ठीक है, एड्रेस के बाद बोल दिया एज, ठीक है। एज के बाद आ गया अपना फैमिली बैकग्राउंड, के बाद आया फैमिली बैकग्राउंड। अब देखो फैमिली बैकग्राउंड में तुम्हें मैं दो चीजें बता रही हूँ, ठीक है। फादर नेम, अरे रिश्ता थोड़ा ना देखने जा रहे हो, फादर नेम मदर नेम बताओगे? मैं ये कह रही हूँ, देखो नॉर्मल इंट्रोडक्शन तुम दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होएगा? ग्रीटिंग, हेलो, हाय, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हेलो सर, हेलो मैम। इनफॉर्मल और फॉर्मल वे, एक तरफ लिखो तुम इंट्रोडक्शन, उस तरफ लिखो फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर तुम किसी को जानते हो, ठीक है, इनफॉर्मल वे में लिख रहे हो, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ठीक है, हमने तब बोल दिया हाय हाउ आर यू, ठीक है। और अगर तुम किसी को नहीं जानते, तो तुम उसके साथ सर मैम ऐसे करके कुछ फॉर्मल चीजें लगाओगे। सीनियर है तुम्हारा कोई, चाहे जूनियर है, हेलो, तब हम क्या यूज करते हैं? हेलो। मैंने ये चीज बताई थी कि जब हम फॉर्मल यूज करते हैं तो हम फर्स्ट, क्या यूज करते हैं? हेलो। और जब हम हेलो, इनफॉर्मल लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हाय, हाय और हे, ठीक है, हाय एंड हे, हाय ठीक और है, हाय, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ग्रीटिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया कि थैंक, अगर एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, कि अगर तुम्हें कोई ऐसे बोल रहा है ना कि मैंने मान लो इंट्रोड्यूस करा रवि को, हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल, टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस रवि, कि रवि ही इज अ न्यू स्टूडेंट इन दिस क्लास, आई विल रिक्वेस्ट रवि, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने रवि को बोला कि रवि, मतलब रवि जो है इस क्लास में न्यू न्यू बच्चा आया है, एंड मैं रवि से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रवि क्या आप क्लास को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। तो सबसे पहले जो ये पर्सन बोल रहा है ना, मान लो मैं बोल रही हूँ, तो रवि को मेरे को थैंक यू करना पड़ेगा, अगर हम इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में कर रहे हैं, कि थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। दिस अपॉर्चुनिटी हाँ, टू टू मी, प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जब कभी भी तुम आगे चल के, सारे बढ़ते हुए बच्चे हैं, ठीक है, सारे जॉब कर रहे हैं, या फिर दो बच्चे हैं वो आगे जाके जॉब करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई तुम्हें एक मौका देता है कि तुम क्लास को, तुम औरों के आगे, तुम 10 लोगों के आगे अपना इंट्रोडक्शन दो, तो तुम्हारा पहला वर्क क्या रहेगा? ग्रीटिंग देना। पहले दी हेलो एवरीवन, ठीक है, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे? मान लो नाम लेके, कि मैंने बोला, मान लो रवि ने ना, या फिर सुजीत जी ने ना क्लास के आगे बोला कि महक जो है एक न्यू स्टूडेंट है, तो मैं इस वे में बोलूंगी, हेलो एवरीवन, फॉर्मल है, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, तो ये फॉर्मल है। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। होप यू आर डूइंग वेल का मतलब क्या होता है? कि आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अच्छे हो, ठीक है। अब मैं पूछूंगी हाउ आर यू, तो सारी इतनी जनता जनार्दन है, इतनी सारी भीड़ है, वो एक एक करके तो बोलेगी नहीं वी आर फाइन, वी आर एक, गुड, ठीक है। हमें और किसी को अभी मौका नहीं देना, हमें अपनी बात रखनी है। हम बोलेंगे हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है।
आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगी थैंक यू सुजीत जी टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू सुजीत जी, ठीक है, धन्यवाद सुजीत जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके आगे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है, ये एक बेटर ऑप्शन रहता है, हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगी हेलो माय नेम इज महसूद, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दिल्ली ओनली। ठीक है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अगर जरूरत पड़ी, वहां पूछ रहे हैं या कुछ है, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं इतनी ईयर्स ओल्ड की हूँ। ठीक है, आई एम वर्किंग एज अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन दिस कंपनी और मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस है 4 साल का। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी अपनी क्वालिफिकेशंस। उस बीच में मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बता सकती हूँ। कैसे? नाम, एड्रेस, एज, फैमिली बैकग्राउंड, कि मेरे फैमिली में इतने लोग हैं या फिर मैं इस फैमिली से। अब मैं तुम्हें एक न्यू चीज बताती हूँ। फैमिली, अभी यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी तक मैंने क्या हाँ। बताया राकेश जी, कैन यू प्लीज टेल मी? मैम अभी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रीटिंग, अगर आपको, इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ, ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, मैंने सारी चीज ही आपको इंट्रोडक्शन की बताई है। तो आपको जो इंट्रोडक्शन देना है, आप किस मैनर में दोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? हेलो, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग। उसके ग्रीटिंग्स। बाद उसके बाद उसके बाद आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ उसके बारे में हाँ सब। हाँ, ठीक है, तो आप थैंक यू, उसके थैंक यू बाद करोगे। थैंक यू। हाँ, उसके बाद उनके बारे में पूछेंगे, आप कैसे हो सारे। अच्छा, वो तो हम हाउ ग्रीटिंग में ही पूछते हैं, वो ग्रीटिंग में पूछा जाएगा। देखो, आराम से समझो इस चीज को, इतना हबड़ा तबड़ी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आया ग्रीटिंग्स। हमारा हेलो, हाय, हे। डिपेंड करता है हम फॉर्मल बोल रहे हैं इनफॉर्मल बोल रहे हैं। अगर हम इनफॉर्मल बोल रहे हैं, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी दोस्त या जानकार से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे हेलो ब्रदर, हेलो, मान लो मैंने बोल दिया सुजीत जी को, हेलो सुजीत, हाउ आर यू, कैसे हो आप? ठीक है, मैं जानती हूँ उनको। फाइन मैम। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया। ठीक है, अभी मैं ये बोलूंगी कि चलो ठीक है, मैंने सुजीत जी को बोला, अब मेरा कोई सीनियर है, उसने मेरे को बोला कि आप सबको इंट्रोड्यूस करो, मैं बोलूंगी हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने तुरंत ही बोल दिया हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने हेलो बोल दिया, मैंने उनको ग्रीटिंग कर दी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैंने उनको पूछ भी लिया कि आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये सारी क्या है? ये सारी क्या चीजें हैं? ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स। ये सारी इंपॉर्टेंट ग्रीटिंग्स है जो हमें करनी होती है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? इंट्रोडक्शन फ्रेज। इंट्रोडक्शन से पहले क्या आएगा हमारा? थैंक यू। अगर कोई हमें मौका दे रहा है इंट्रोड्यूस करने का, अगर हम खुद खड़े होके कर रहे हैं तो ठीक है, तब हम अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर किसी ने बोला है या ऑफिस में कोई बोल रहा है या मान लो क्लास में टीचर ने बोला, तो मैं बोलूंगी थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। राइट? चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे तुम ऑफिस में हो, चाहे तुम किसी बड़े इवेंट पे हो, स्टेज पे। स्टेज पे इवेंट में हो। ठीक है, यहाँ तक दो चीजें समझ आ गई राकेश जी? सबको समझ आ गई? ग्रीटिंग, थैंक यू। ठीक है, ग्रीटिंग और थैंक यू। अब थैंक यू के बाद में आते हैं हम अपने पे, माई सेल्फ। आप इसके नीचे लिख दो माई सेल्फ। माई सेल्फ में क्या आएगा? नेम, लोकेशन, अगर जरूरत पड़ी तो उम्र बता दी, और चौथी चीज है फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड में अभी यहाँ तक समझ आ गया, क्योंकि मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, फैमिली बैकग्राउंड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। क्लियर। फैमिली में हमारे आते हैं दो पार्ट, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। ठीक है, कोई मेरे को बता सकता है दोनों में फर्क क्या होता है, अगर किसी को पता है? न्यूक्लियर फैमिली मतलब जैसे हम, न्यूक्लियर हमारा फैमिली सिर्फ जैसे परिवार। जॉइंट फैमिली राके मतलब सारे। राकेश जी आप बताओ।
मैम जो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जैसे हमारा सिर्फ हमारा ही परिवार है। ज्वाइंट फैमिली मतलब चाचा ताऊ सारे एक साथ हों ठीक है। सब। न्यूक्लियर फैमिली हो गए पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स पेरेंट्स के चिल्ड्रन। बच्चे, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया कि क्या कहते हैं, और जॉइंट फैमिली में हो गया पेरेंट्स के भाई बहन जो हमारे चाचा चाया लगे, अंकल आंट लगे, हमारे कजिन्स हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, वो सारे हो गए, वो हो गया हमारी जॉइंट फैमिली। मैं बोलूंगी, अब मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं तीन चीजों को मिला के बताऊंगी, ग्रीटिंग्स, थैंक यू और माई सेल्फ। मैं बोलूंगी हेलो सर, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इसका मैं ये बोलूंगी हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच प्रिया फॉर एग्जाम्पल, या फिर इल्मा, थैंक यू सो मच इल्मा टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज महक सूद, आई एम फ्रॉम दिल्ली and I am 23 or 24 years old and I belong to a nuclear family। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिलोंग का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? मैं वहां से साथ बिलोंग साथ मैं उनसे साथ ताल्लुक रहते हैं। रहते हैं। ताल्लुक ताल्लुक हाँ करते हाँ हैं, ताल्लुक, हाँ बिलोंगिंग, मेरा ताल्लुकात, ठीक है, मेरे ताल्लुकात जो है न्यूक्लियर फैमिली से है। ये चारों चीजें क्लियर है अभी आपको? यस। सुजीत जी, क्या आप मेरे को माई सेल्फ वाला पार्ट बता सकते हो? My name is Sujit. यस, I am 24 years old. ओके, I live in Delhi. ओके, I am फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। I am graduate from Delhi University. अभी क्वालिफिकेशंस की तो बात ही नहीं हुई, अभी क्वालिफिकेशंस भी आएगी। अभी मैंने आपको सिर्फ चार चीजें बताई, इसको ना स्टेप बाय स्टेप चलो आप, क्वालिफिकेशन भी आएगी और भी चीजें आएंगी। अभी आपका एक्सपीरियंस भी तो आएगा कि आपको एक्सपीरियंस इतने साल का है, आप अभी अकाउंटेंट हो, ये भी तो चीजें आएंगी। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप इसको ना सीढ़ी की तरह चढ़ो, सीढ़ी की तरह, कि मेरा नाम है सुजीत, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं 24 साल का हूँ, और मेरी जो बिलोंगिंग है, जो मेरी फैमिली है, वो मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बस जी। चार चीजें आएंगी ना। माय नेम इज सुजीत कुमार, आई बिलोंग टू दिल्ली, माय एज इज 24 और आई एम 24 years old, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। क्लियर? Okay, ma'am. क्लियर है? Yes. राकेश जी, आपको Yes, माई ma'am. सेल्फ देना हो कैसे दोगे? मैम माय नेम इज राकेश कुमार, आई लिव इन दिल्ली, माय एज इज 38 years old, ओके, आई एम आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू दिल्ली दिल्ली आई बिलोंग टू कौन सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, अ न्यूक्लियर फैमिली। रवि, आप माई सेल्फ और ग्रीटिंग और ये थैंक यू का सारा बोल के बताओ एक बारी। अगर मैं क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे तो मैं ऐसे अपने बारे में बताऊंगा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सॉरी, हेलो माय न्यू फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, माय नेम आई इज रवि, होप, आई लिव, होप क्यों बोला, होप, आई आई होप, होप, सॉरी, I हाँ, hope you are doing great in your life. My name is Ravi and I live in Delhi and I belong to nuclear family. आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, आई बिलोंग टू अ Nuclear family. to a nuclear Yes. family, I belong to a nuclear family, I belong to a joint family। यहाँ तक क्लियर है? प्राची, आप इंट्रोडक्शन दो एक बार, ये तीनों चीजों को मिला के, Voice ग्रीटिंग, break. थैंक यू। प्राची, Yes, ma'am. ग्रीटिंग, Hello, everyone. I hope. ग्रीटिंग, थैंक यू और माई सेल्फ, तीनों बताओ। Hello, everyone. I hope you are doing well. Uh, First of all, thank you for giving me opportunity to introduce myself. My name is Prachi. I am 14 years old, and I belongs to a nuclear family. रहते हो आप? रहते किधर हो आप? क्या बोल रहे मैम?
रहते किधर हो I आप? lived in Ludhiana. रह गया ना? I lived in Ludhiana. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ऐसा होएगा कि पटर पटर आप इस चीज को ना अपने इंट्रोडक्शन को फटाफट बोल सको। ठीक है, इल्मा आप बताओ। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Hello, everyone. I hope you all are doing great. Thank you for giving me this opportunity. My name is Silma. I am 17 years old. I live in Himachal Pradesh, and I belong from joint family. I belong to a I belong to a joint न्यूक्लियर family. जॉइंट फैमिली। ओके, क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को इन Yes. चीजों में डाउट है तो मेरे से पूछ लो फटाफट, क्योंकि इसके आगे ना हमें अपना वो पार्ट भी कवर करना है कि हम करते क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है, और हम अभी एक्सपीरियंस क्या है, वो सब भी पार्ट आएगा इसके अंदर। उसके बाद हमारी हॉबीज भी आएंगी, हमारी स्ट्रेंथ्स भी आएंगी। यहाँ तक ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। रट्टू तोता इस चीज में बन जाओ कि भाई ये तुम्हें तुम्हारी जुबान पे हो। तुम्हें कोई बोले इंट्रोडक्शन, अच्छा भी लो, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। Okay. सबको क्लियर है? कोई Yes, एक ma'am. को Yes, इतना ma'am. सा भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. क्या है ना, अभी मेरे पास लिखा तो मेरे पास बहुत कुछ है कि भाई तुम्हें डेली डेली का ये कराना है, फ्रेजेस सेंटेंसेस बताना है, पर अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी ना थोड़ा वीक है, तो उस पर थोड़ा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। और कईयों की एबीसीडी में भी इशू आ रहा है। तो आज का मैं एक चाहूंगी इंट्रोडक्शन का, तुम्हारी इंट्रोडक्शन लर्न होनी चाहिए। कल मैं एक एक से फटाफट 5 मिनट के अंदर मेरे को चाहिए, ऐसे नहीं नहीं, लर्न होना चाहिए तुम्हें। इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने करवाया, और एबीसीडी की सबकी, एक की नहीं सबकी, जिनकी बहुत बढ़िया भी है ना एबीसीडी की वोकैबुलरी, वो भी मेरे को भेजेंगे ग्रुप में। ठीक है, ऑडियो आनी चाहिए और मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगी। ठीक है, उसमें किसी को कोई डाउट हुआ पूछ लेना। सुजीत जी, राकेश जी, जितेंद्र, Yes, ma'am. इन लोगों के जिनके होमवर्क नहीं आ रहे हैं प्लीज दो, क्योंकि बिना होमवर्क किए, बिना प्रैक्टिस किए तुम अगर सोचोगे इंग्लिश आ गई हमें, तो नहीं आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, क्लियर ma'am. है? पुराना काम क्लियर करो, एबीसीडी से लेकर जो भी है होमवर्क। मुझे कल नेक्स्ट क्लास से पहले पहले पुराना सारा होमवर्क और आज का जो दूंगी वो क्लियर चाहिए। मैं तुम्हें इतना होमवर्क तो नहीं देती मेरे ख्याल में कि तुम्हारे पास इतना आधा घंटा। अच्छा रवि, ये बताओ जो मैंने लास्ट होमवर्क दिया है तुम्हें सैटरडे संडे का भी इंक्लूड करके, तुम्हें कितना टाइम लगा करने में? मैंने तो उसी समय कर लिया था, क्लास एंड होते ही मैंने कर लिया था। क्लास एंड दस होते पंद्रह कर मिनट का ही। है ना? हाँ, 10-15 मिनट। हाँ, हाँ, इल्मा आपको कितनी देर लगी? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes। प्राची? 10 minutes. 10 to 15 मिनट्स, राइट? तो वही मैं कह रही हूँ, अभी तो ये मैंने 3 दिन का तुम्हें होमवर्क दिया था, तो इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, चाहे तुम ऑफिस में भी 10 मिनट निकाल लो, लंच के बाद निकाल लो, फोन वगैरह सब होता है, तो ट्राई करो करने का। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आज की Okay, ma'am. क्लास, पुरानी क्लास में सारा क्लियर है। यूट्यूब की वीडियो देख लेना जिसको कोई इशू था, और इसके अलावा राकेश जी आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी, वो वीडियो चाहे बैठ के आप सुन लेना कि क्या था। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, क्लियर है? क्लास एंड Yes. करें? यस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। Hello, ma'am. हाँ जी, बोलो Ma'am, बोलो। I want to यू वांट टू? reintroduce myself, ma'am. यस, प्लीज डू। Hello, everyone. My name is Sujit. I am 24 year old. आई एम 24 ईयर ओल्ड। 24 years old, bro. व्हाट इज दिस 24 ईयर ओल्ड? Repeat. है सुजीत जी? Okay, repeat. ऐसे Ma'am, I can बोलोगे? repeat. अभी आपने देखो सीधा 24 ईयर ओल्ड बोल दिया, आपने ग्रीटिंग प्रॉपर नहीं करी, आपने थैंक यू नहीं बोला। इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले आप, कोई बात नहीं। Okay, ma'am. ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट लिख लेना। मैं अभी देखती हूँ सारा होमवर्क, फिर देखती हूँ कौन कितना करता है। ठीक है, जी. डन है? क्लास एंड करें? Done. Okay, ma'am. ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।